Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, let's start our today's lecture with this beautiful dua. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. My Rabb, forgive me and have mercy, for you are the best of those who show mercy. Ameen. Summa Ameen. Let's start our today's lecture with chapter number 10. Where do those bright ideas come from? By Lancelot White. इसका मतलब क्या बच्चों टॉपिक का कि रोशन ख्यालात किस तरह और क्यों कर पैदा होते हैं या कहाँ से आते हैं. Let's have a brief introduction of your writer. Lancelot Law White was born in 1896. He has been widely interested in science and technology, especially in the development of powered jets. He is the author of the University Principle in Physics and Biology, Every Man Look Forward, and The Next Development in Man, which emphasize the synthesis of science. The present essay is from chapter number 2, Thinking Straight of Acceleration. As imagination bodies forth the forms of things unknown, a midsummer night's dream. अब ये बच्चों आपकी जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है शेक्सपियर के प्ले की एक बड़ी मशहूर लाइनों से. ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर का प्ले है, उसमें से लिया गया है ये. और इसका मतलब क्या है? जब तख़य्युल नामालूम चीज़ों की शक्लों को मुजस्सम बना देता है तो मौसम गर्मा की रात का ख्वाब. ठीक है, ये इतना ज़्यादा आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, कि आपके सामने वो शक्लें जो है ना, आपके ख़यालात में वो शक्लें जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं. कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं आपको जो आपके जहन में, आपकी आंखों के सामने कुछ मुजस्सम शक्लें बना देते हैं उसके. There are few experiences quite so satisfactory as getting a good idea. You have had a problem, you have thought about it till you were tired, forgotten it, and perhaps slept on it. And then flash, when you weren't thinking about it, suddenly the answer has come to you. As a gift from the gods, you are pleased with it and feel good. It may not be right, but at least you can try it out. कहते हैं बच्चों, ज़िंदगी में बहुत कम तजर्बात ऐसे इत्मीनान बख्श होते हैं जितने के अच्छे ख्याल का हासिल करना. मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी मसले का सामना है और आपने उसके बारे में इतना सोचा है कि आप सोच सोच के थक गए और फिर ये हुआ कि आप और किसी बात में लग गए और आप उसे भूल गए अपने मसले को, या शायद उस पर सोचते सोचते आपकी आँख भी लग गई और आप सो गए और फिर अचानक एक फ्लैश होता है, एक चमक, जैसे आँखों के सामने कोई झपाका सा होता है कोई, और जब आप उस मसले के बारे में सोच भी नहीं रहे होते तो आपके पास अचानक जवाब आ जाता है, जैसे किसी की जानिब से वो तोहफे में जवाब मिला होगा. फिर आप उस पर बहुत खुश होते हैं, बड़ी मुसरत महसूस करते हैं. और हो सकता है कि ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त ना हो, लेकिन आप कम से कम उसे टेस्ट तो कर सकते हैं ना, आप ट्राई तो कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि मसले पे सोच रहे हैं, कोई हल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक फिर अल्लाह ताला आपके जहन में कोई आइडिया डाल देता है. ठीक है, ऑफ कोर्स ऑल आइडियाज़ डोंट कम लाइक दैट, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट so many do, particularly the most important ones. They burst into the mind, glowing with the heat of creation. How they do it is a mystery. Psychology does not yet understand even the ordinary processes of conscious thought, but the emergence of new ideas by a leap in thought, as Davy put it, is particularly intriguing because they must have come from somewhere. For the moment, let us assume that they come from the
unconscious. This is reasonable, for the psychologists use this term to describe mental processes which are unknown to the subject, and creative thought consists precisely in what was unknown becoming known. अब बेशक बच्चों तमाम ख्यालात इस तरह से तो नहीं आते हमारे जहन में, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने सारे ख्यालात आते हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा अहम तो आते ही इसी तरह से हैं, और वो दिमाग में अचानक से आ जाते हैं, और जो क्रिएटिव थिंकिंग की जो एक हीट होती है उससे वो चमक रहे होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि वो ख्यालात कैसे हमारे दिमाग में आते हैं, ये एक राज है। और जो इल्मी नफ्सियात है बच्चों, साइकोलॉजी, तो वो अभी शऊरी फ़िक्र के आम अमल को भी नहीं समझती है। लेकिन जैसा कि डेवी, जो कि बड़ा मशहूर जो है वो साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, उसने कहा कि फ़िक्र में छलांग लगाकर नए ख्यालात की नमूद ख़ास तौर पर परेशान कौन सी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो आते ही होंगे ना। वक्ती तौर पर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो हमारे लाशऊर से आते हैं, तो ये बात भी माकूल सी है, क्योंकि नफ्सियात दान जो हैं वो इस इस्तिलाह को इस जहनी तरीक़े के बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका इंसान को इल्म नहीं होता, और तख्लीकी ख्याल नामालूम को मालूम बनाने पर मुश्तमिल होता है। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? We have all experienced this sudden arrival of a happy idea, but it is easiest to examine it in the great creative figures, many of whom experienced it in an intensified form and have put it on record on their memories, on their memoirs and letters. One can draw examples from genius in any realm, from religious mysticism, philosophy and literature to art and music, and even in mathematics, science and technical invention, though these are often thought to rest solely on logic and experiment. It seems that all truly creative activity depends in some degree on these signals from the unconscious, and the more highly intuitive the person, the sharper and more dramatic the signals become. हम सबको इस खुशकुन ख्याल की अचानक आमद होने का तजर्बा तो हो चुका है, लेकिन जो अजीम तख्लीक कार हस्तियाँ हैं उनमें इनका जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा आसान है, जिनमें से बहुत सारे जो अजीम राइटर्स थे या फ़िलासफ़र्स थे, उनमें से बहुत सारों ने तो इसी किसी न किसी शदीद शक्ल में आते हुए देखा और अपने ख़तूत या याददाश्तों में इस बात को महफूज भी कर दिया है। और किसी भी मैदान में जो बिल्कुल नए नए लोग आते हैं उनमें से मिसालें ली जा सकती हैं। आप मजहबी तौर पर, तसव्वुफ़ के तौर पर, फ़लसफ़े और अदब से लेकर फ़न मुसव्वरी और मौसीक़ी और रियाज़ी, साइंस और टेक्निकी जितनी भी ईजादात हैं उसमें भी आपको इन सब के जो है वो तजर्बों का आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा। और अगरचे ये ख्याल किया जाता है कि इनका इन्हिसार तो मुकम्मल तौर पर मंतक और तजर्बे पर है, लेकिन ऐसे दिखाई देता है कि तमाम असली तहक़ीक़ी अमल का दारो मदार किसी हद तक लाशऊर से इशारात मिलने पर मुनहसर है। और जितना ज़्यादा वजदानी कैफियत से कोई शख्स सरशार होगा, उतना ही ज़्यादा तेज़ और ड्रामाई तौर पर उसे इशारात मिलेंगे। ठीक है बच्चों? Here, for example, is Richard Wagner conceiving the prelude to Rheingold as told by Wagner himself and recounted by Newman in his biography. Wagner had been occupied with the general idea of the ring for several years and for many weary months, and had been struggling to make a start with the actual composition. On September 4, 1863, he reached Spezia sick with dysentery, crawled to a hotel, could not sleep for noise without and fever within, took a long walk the next day, and in the afternoon fling himself on a couch, intending to sleep. And then at last the miracle happened for which his subconscious mind had been crying out for so many months. Falling into a trance-like state, he suddenly felt, he says, as though he were sinking in a mighty flood of water. मिसाल के तौर पर अगर आप रिचर्ड वैगनर की मिसाल लें बच्चों, जो कि बड़ा मशहूर
म्यूजिशियन था, उसने राइन गोल्ड के लिए पेश लफ्ज़ की फ़िक्र में था वो। राइन गोल्ड जो है वो उसकी अपनी तख्लीक थी एक, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो वैगनर ने ख़ुद सुनाई थी, ठीक है, और न्यूमैन ने उसकी जो बायोग्राफी थी उसने उसको महफूज कर लिया था। वैगनर जो है वो रिंग उसका एक मखसूस एक उसका काम था, उसके बारे में अमूमी फ़िक्र में कई सालों से जो है वो बड़ा मशगूल था, और असल मौसीकी बनावट को शुरू करने के बारे में कई महीनों से सोच सोच कर परेशान हो रहा था। लेकिन 4 सितंबर 1863 को वो पेचिश के मर्ज़ में मुब्तला होकर स्पीजिया पहुंचा। बमुश्किल तमाम एक होटल के बाहर पहुंचा वो, और बाहर के शोर और अंदर के बुखार के बायस रात भर नहीं सो सका, और फिर अगले दिन एक लंबी पैदल सैर की, और दोपहर को बिस्तर पर सोने की गर्ज से अपने आप को जब उसने लेटा दिया, वो लेट गया, तब आखिरकार वो मुआवजा वक़ू पज़ीर हुआ, जिसके लिए उसका जो सब कॉन्शियस था उसका, वो इतने अरसे से महीनों से तड़प रहा था। एक नीम बेहोशी किसी कैफियत में मुब्तला उसने अपने बकौल अचानक महसूस किया जैसे वो एक ज़बरदस्त किस्म के दरिया में डूबता चला जा रहा है। यानी जब भी कोई आपको आइडिया आता है बच्चों, तो अचानक आप किसी बात में सोच रहे होते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बात आपको नहीं उसका सोल्यूशन मिलता, लेकिन जब आप उस पर सोचना छोड़ देते हैं तो फिर अचानक ही आपके जहन में उसका कोई आइडिया जो है वो आ जाता है। द रश एंड roars soon took musical shape within my brain, and as the chord of E flat major surging incessantly in broken chords, yet the pure triad of E flat major never changed, but seemed by its steady persistence to impart infinite significance to the element in which I was sinking. I awoke from my half sleep in terror, feeling as though the waves were rushing high above my head. I at once recognized that the orchestral prelude to the Rheingold, which for a long time I must have carried about within me, yet had never been able to fix definitely, had at last come to being within me. Yet had never been able to fix definitely, had at last come to being within me, and I quickly understand the very essence of my own nature. The stream of life was not to flow to me from without but from within. अब वो अपने तजर्बे को बच्चों जो उसने एक्सपीरियंस किया था उसको मज़ीद बयान करते हुए कहता है, जैसे कि पानी के ज़ोर और शोर ने जल्द ही मेरे जहन में मौसीकी की शक्ल इख्तियार कर ली, गोया कि वो ई फ्लैट मेजर का सर हो जो टूटे हुए सिरों में ऊपर नीचे को बार बार उभर रहा हो। ई फ्लैट मेजर बच्चों ये इनकी म्यूज़िकल कॉर्ड्स होते हैं इनके, ठीक है। लेकिन ई फ्लैट मेजर के पूरे 3 रूप बिल्कुल भी तो नहीं बदल रहे थे, बल्कि यूँ लग रहा था कि वो इस अंसर में को जिसमें वो डूब रहा था एक लामतनाही अहमियत जो है वो दे रहे हों। और वो कहता है कि मैं अपनी इस नीम ख्वाबी से खौफ के मारे जाग उठा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लहरें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हों। और फिर वो कहता है मुझे अचानक महसूस हुआ कि जो राइन गोल्ड का मौसीकी वाला दिबाचा यही तो था जिसको वो अभी तक मुतय्यन नहीं कर सका था, और अब ये दिबाचा जो है उसके अंदर जन्म ले चुका था, और उसने अपने मिजाज की असल रूह को तेज़ी से जान लिया। अब ज़िंदगी की नदी ने कहीं बाहर से बहकर तो उसके अंदर नहीं आना था, बल्कि उसके अंदर से ही आना था ना बच्चों। जो सोच आप सोच रहे होते हैं, जो आपकी अपनी ज़ाती सोच होती है, और जिन खतूत पे आप सोच रहे होते हैं, वो आप दूसरों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। जो कुछ भी आइडियाज़ हैं, उनका चश्मा है, वो आपके अपने अंदर से ही आना है फिर, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं बच्चों, आपकी रिपोर्ट के ऊपर आते हैं हम, ठीक है।